উপার্জন তো করেছেন অনেক, উপার্জন তো করছেনও, কিন্তু সেই উপার্জন যদি সঞ্চয় ঠিকমতো না করতে পারেন তাহলে যে স্বপ্নগুলো দেখছেন সেই স্বপ্নগুলো কি করে ছুঁতে পারবেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তেই পেতে চাই। এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড তাদের উদ্যোগ বড়তে ভারতকে সাথ, বাংলায় বললে বিকশিত ভারতের সঙ্গে। বিকশিত ভারতের সঙ্গে আমাদের আরও বিকশিত হতে হবে। তার কারণ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য অর্থ সঞ্চয় কোনো রকম সংশয় যেন না থাকে। অনেকে বলবেন যে হ্যাঁ সংশয় আছে, সেই সংশয় দূর করতেই আজকে এই উদ্যোগ। এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড, টিভি9 বাংলা এবং মানি9-এর উদ্যোগে বিকশিত ভারতের সঙ্গে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর, আমাদের সকলের প্রশ্নের উত্তর মিলবে। তার জন্য বিড়লা সভাঘরের ভেতরে যেতে হবে। তার কারণ আজকে এই বড়তে ভারতকে সাথ মানে বিকশিত ভারতের সঙ্গে কলকাতার সঙ্গে আমি শুভজিৎ রয়েছি বিড়লা সভাঘরের সামনে। আসুন সে প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। মিউচুয়াল ফান্ড, এই মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ আপনাকে আপনার স্বপ্ন ছুঁতে কতটা সাহায্য করবে সেই যাবতীয় উত্তর আজ এখান থেকে মিলবে। আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে স্টেজে মানি9-এর এডিটর অংশুমান তিওয়ারি। আমি অংশুমানের কাছে যাব এবং অংশুমানের কাছে এই যাবতীয় প্রশ্নগুলোর উত্তর সে কিভাবে দেবে একবার দেখব। ওভার টু অংশুমান প্লিজ। भारत में पहली बार एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ टीवी9 बांग्ला और मनी9 मिलकर लाए हैं खास शो, जहां हम मिलेंगे देश के सबसे नामचीन म्यूचुअल फंड विशेषज्ञों से और उनसे बात करेंगे आपके सीधे सवाल, आपके सवालों के जवाब। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ईस्ट जोन हेड मनोज कुमार सिन्हा। जितनी उम्र भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की है ना 30 साल, उतना तजुर्बा है मनोज जी का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और इनसे आज हम बात करेंगे। मैं भी कुछ अपने सवाल पूछूंगा, कुछ मेरी शंका है जिनका मैं समाधान लूंगा, कुछ सवाल आप लोगों के होंगे जो ऑडियंस हमारे सामने बैठे हुए हैं। कोलकाता के लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या उनके लिए सही है, इस पर भी सवाल पूछेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए ये वीडियो पैकेज जो आपको बताएगा कि पिछले 10 साल में विकसित होते भारत के साथ, बढ़ते भारत के साथ किन किन लोगों ने क्या क्या कमाया है। বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বেড়ে চলা অর্থনীতি, কোভিড সত্ত্বেও বৃদ্ধির হার চমকে দিয়েছে বিশ্বকে। স্থিতিশীল সরকার, ধারাবাহিক সংস্কার, রেকর্ড বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার, বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম শেয়ার বাজার, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পূর্ণ আস্থা। কোনো বিনিয়োগকারী যদি গত 10 বছরে আমেরিকা বা চীনে লগ্নি করে থাকেন তাহলে তিনি আফসোস করছেন, কারণ ভারতীয় শেয়ার বাজার গত 10 বছরে প্রায় 11% রিটার্ন দিয়েছে, অর্থাৎ আমেরিকা ও চীনের থেকেও বেশি। রিটার্নের হার গত 5 বছরে 18.8%। অবাক হবেন না, ভারতের এই সাফল্যের কাহিনী নিয়ে এখন সারা বিশ্বে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু আপনি কি এই আর্থিক অগ্রগতির সুবিধা নিয়েছেন? আপনি বলবেন কিভাবে করব, আমরা তো শেয়ার বাজারের কিছুই জানি না। আরে ভাই, গতকালের কথা ছাড়ুন, এখন মিউচুয়াল ফান্ড আছে তো নাকি? গত 10 বছরে ভারতের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় 5 কোটি মানুষ তাদের সঞ্চয় বাড়িয়েছেন, নিজেদের এবং তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করেছেন, কারণ তারা সঞ্চয়ের পুরনো পদ্ধতি ছেড়ে ভারতের সমৃদ্ধির ওপর ভরসা করেছেন। আপনি যদি তরুণ হন তাহলে মিউচুয়াল ফান্ডে সঞ্চয় করা শুরু করুন। আপনি সবচেয়ে ভালো সময়, একেবারে সঠিক জায়গায় আছেন। আপনার ঘুম যদি দেরিতে ভেঙে থাকে তাহলে মাঝ বয়সে এসে আপনার সঞ্চয় খতিয়ে দেখুন। আপনার ভবিষ্যৎকে নিরাপদ ও সুখী করার জন্য আপনার সামনে অগণিত বিকল্প রয়েছে। এবং আপনি যদি অবসরপ্রাপ্ত হন তবে আপনার সঞ্চয় থেকে আরও বেশি উপার্জন করুন এবং আপনার জীবনকে উজ্জ্বল করুন। আসুন দেশের বৃহত্তম মিউচুয়াল ফান্ড এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ডের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দেখা করি। মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির অধীনে। পরিকল্পনা সম্পর্কিত সমস্ত নথি সাবধানতার সাথে পড়ুন।
मनोज जी, इस विशेष सत्र में स्वागत है कोलकाता से। हम इस श्रृंखला की शुरुआत कोलकाता से कर रहे हैं। आप भी असंख्य लोगों से मिलते होंगे जिन्होंने म्यूचुअल फंड के सहारे अपनी ज़िंदगी बदली। कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई संस्मरण आपके दिमाग में ऐसा आता हो जिसे हम बता सकें, जहाँ से अपनी बातचीत शुरू कर सकें? बिल्कुल। पिछले 3 दशकों में यदि आप देखें तो इंडिया में काफ़ी इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू वेल्थ क्रिएट हुआ है। और एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक वृद्ध निवेशक आए थे और उन्होंने काफ़ी पहले 10,000 रुपये एक फ़ंड में इन्वेस्ट किया था, जो उसका नाम था SBI टैक्स गेन फंड। बट काफ़ी पहले किया था, करीब 1993 में किया था, आज से 30 साल पहले। और वो इन्वेस्टमेंट करके वो भूल गए थे, उनकी सर्टिफिकेट कहीं और पड़ी थी, उन्हें ध्यान नहीं था। और काफ़ी दिनों के बाद जब उनको ये सर्टिफिकेट दिखा तो हमारे ऑफिस आए थे लेकर के, और उन्होंने बोला कि थोड़ा चेक करके बताइए इसका क्या स्टेटस है। और जब हमने उसकी वैल्यू उनको बताई तो वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि वो जो उन्होंने 10,000 रुपया निवेश किया था उसका आज के दाम में, आज के डेट में उसका जो वैल्यू था वो करीब 9 लाख रुपए के करीब था। और उनको पैसे की काफ़ी ज़रूरत भी थी। तो मतलब इट वाज रियली, मतलब इस तरह का वेल्थ क्रिएट हुआ है म्यूचुअल फंड के द्वारा पिछले 3 दशकों में। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। म्यूचुअल फंड में हमेशा जब लोग बात करते हैं तो SIP और लंप सम के भ्रम की बात करते हैं, कन्फ्यूज़न की बात करते हैं। SIP सही है या एक मुश्त पैसा लगाना सही है? किसके लिए क्या सही है? क्योंकि अब बाजार में दोनों तरीके के विकल्प उपलब्ध हैं और SIP छोटी से छोटी इनकम वाला व्यक्ति भी कर सकता है। तो संक्षेप में आप इस पूरी चर्चा को शुरू करने से पहले इस भ्रम को दूर कर दीजिए लोगों के लिए कि उन्हें SIP चुनना चाहिए या लंप सम चुनना चाहिए। तो इसमें देखिए ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट हम फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट में कर रहे हैं, यानी या तो आपकी कोई सैलरी है, मंथली इनकम है, आपकी सैलरी है, या आप कहीं से बिजनेस कर रहे हैं, आपको हर महीने पैसे आ रहा है, तो वो पैसे को निवेश करने का सबसे सही तरीका है SIP के द्वारा। क्योंकि वो फ्यूचर में आपका इनकम आता जाएगा, जैसे ही वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएगा वहाँ से वो इन्वेस्ट हो जाएगा SIP के द्वारा। तो वो उसमें सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ, यदि आपके पास कुछ लमसम पैसा है या आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई अपना फ्लैट सेल किया, या कोई आपको एनुअल बोनस मिला आपको, या इस तरह का कोई वन टाइम इनकम यदि आपके पास आया है, तो उसको निवेश करने के लिए आप लमसम में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं एट वन गो। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए, बाज़ार के उतार चढ़ाव को कम करने के लिए हम उसे 6 महीने में स्टैगर करके कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपके पास 6 लाख रुपये आप आया है और आप हर नेक्स्ट 6 महीने हर महीने 1-1 लाख रुपया करके निवेश करें, तो ये भी एक अच्छा तरीका है निवेश करने का। पहला सवाल जो नए लोगों के पास, जो युवा लोगों के पास आता है, उनको अपने वेतन का कितना हिस्सा म्यूचुअल फंड में देना चाहिए? वी रेकमेंड कि एटलीस्ट 1/3 आप उसका सेव करें। यदि 30,000 आपकी मंथली इनकम है तो आप 10,000 रुपीज़ हर मंथ सेव करने की कोशिश करें। और यदि उतना नहीं भी हो रहा है, फिर भी जो भी अमाउंट होता है वो करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कितना अमाउंट आप कर रहे हैं, बट कुछ भी होना चाहिए। यदि आप 1,000 रुपये के भी SIP कर रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एक एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊँ कि यदि आपने 1,000 रुपये की SIP शुरू की है, आपका एज 25 ईयर से, आपने जस्ट जॉब शुरू किया और आपने सिर्फ 1,000 रुपये की SIP की है, और जब आप आज से 30 साल बाद जब 55 ईयर्स के होंगे तो इसका वैल्यू, ये 1,000 रुपये SIP का वैल्यू करीब 70 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन यही 1,000 की SIP आप 5 साल के बाद शुरू करते हैं, जब आप 30 साल हो गए, 5 साल आपने कुछ भी नहीं किया और 30 साल से आपने शुरुआत की, तब यदि नेक्स्ट 25 ईयर्स में उसका वैल्यू सिर्फ 32-33 लैक्स होगा, यानी हाफ वैल्यू हो गया उसका। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म पे। तो इसलिए जल्दी शुरू करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ भी अमाउंट ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इससे एक सेविंग हैबिट भी आपकी डेवलप होती है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों के पास भी, हमारे ऑडियंस के पास भी कई सारे सवाल होंगे, तो मैं चलता हूँ शुभजीत के पास पहले सवाल के लिए। शुभजीत, पहला सवाल, आपके पास भी कोई सवाल होगा अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। আপনার বেতন যাই হোক না কেন, যদি সেখান থেকে খুব সামান্য টাকাও আপনি সঞ্চয় করতে পারেন, হ্যাঁ, সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কোনো রকম সংশয় রাখা চলবে না, দেরি করা যাবে না, সময়ের কাজ সময় মতোই করতে হবে। বারবার আমরা এই নীতি কথা শুনি, কিন্তু সেই নীতি কথা প্রয়োগের সময় এসেছে, যেই কারণে বিকশিত ভারতের সঙ্গে আমরাও কতটা বিকশিত হব সেই দিকে আমাদের অবশ্যই নজর থাকতে হবে। কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি তার কাছে যাব। আপনার নাম বলবেন এবং কি প্রশ্ন? হ্যালো স্যার, মাই নেম ইজ মৌমিতা মিত্র। আমার একটা প্রশ্ন আছে, আমি নতুন জবে জয়েন করেছি, কোন মিউচুয়াল ফান্ডটা আমার জন্য বেটার হবে সে বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলেন। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास 2 एडवांटेज है। एक तो आपके पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है,
क्योंकि आप जस्ट आपने शुरुआत की अपने कैरियर की, तो आपके पास लंबा 30-35 साल का समय है। और दूसरा, आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको एक्विटी फंड में करना चाहिए। आप यदि शुरुआत कर रहे हैं तो पहला फंड यदि आपको निवेश करना है तो आप किसी लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड में करें या फिर निफ्टी या सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स में करें, बिकॉज ये पहला ऑप्शन सही रहेगा। आगे जब आपके पास और भी इनकम बढ़ेगा तो आप मिड एंड स्मॉल कैप एक्विटी फंड्स हैं उसमें भी निवेश कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं उसमें भी कर सकते हैं, बट पहला फंड जो होना चाहिए वो लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड होनी चाहिए। मनोज जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 35 साल, 40 साल, 45 साल की है, जिन्होंने अपनी नौकरी शुरू की और उसके बाद एक अधिकांश हिस्सा निकल गया, तब भारत में म्यूचुअल फंड की क्रांति शुरू हुई। तो उनको अपनी नौकरी के शुरुआती 15 साल, 16 साल, 20 साल अपनी बचतें पुराने तरीके से करनी पड़ी, बैंक की एफडी में या बाकी जगह। म्यूचुअल फंड की क्रांति से वो पीछे रह गए। उनके लिए कौन से सबसे अच्छे विकल्प हैं जो अब एक इस स्थिति में पहुंच गए हैं जिनके पास कुछ बचतें पहले से मौजूद हैं? उनके लिए भी इट्स नेवर टू लेट एक्चुअली। तो एक दो चीज़ करनी चाहिए। एक तो आपकी जो इनकम करेंटली हो रही है उसमें जो आपके पास सरप्लस है, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस के अलावा जो सरप्लस है, वो पैसे की तो आप तुरंत एक कुछ एसआईपी शुरू कर सकते हैं कुछ फंड्स में, जैसे इक्विटी फंड्स हो गए, कुछ हाइब्रिड फंड्स में कर सकते हैं और ये एसआईपी शुरू कर दें। दूसरा, आपने पहले से जहाँ निवेश किया हुआ है, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपने बैंक में एफडी करके रखा हुआ है या आपने कहीं पे फ्लैट परचेज़ किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ आप रह रहे हैं उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं पे किया हुआ है, तो वैसे इन्वेस्टमेंट को आप रिव्यू करें और वहाँ पे जहाँ पे भी आपको लग रहा है आप इन्वेस्टमेंट को बीट नहीं कर पा रहे हैं उसी इन्वेस्टमेंट से, वो वहाँ से आप उसे रीएलोकेट कर सकते हैं और वो पैसे को आप वापस म्यूचुअल फंड में डिप्लॉय कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कई सारे ऑप्शन हैं, तो ऐसे नहीं है कि सारे इक्विटी फंड्स ही हैं, सारे रिस्की फंड है। देयर आर डेट फंड्स भी है, आर्बिट्राज फंड भी है, वहाँ मनी मार्केट फंड भी है, हर तरह के फंड है। अब हम आ गए हैं दूसरे चरण में, जहां हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके लिए यही समय है, सही समय है। ये जो बीच का क्लास है, मिडिल क्लास है, जो म्यूचुअल फंड के रिवॉल्यूशन में, क्रांति में, इसमें देर से आया है। इनके अपने कुछ लाइफ गोल्स होते हैं, जीवन के लक्ष्य होते हैं। जैसे किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए बचत करनी है, किसी को मकान के लिए बचत करनी है, बेटी की शादी के लिए बचत करनी है। म्यूचुअल फंड क्या इन लोगों के लाइफ गोल्स को, इनके जीवन के जो लक्ष्य हैं, उनको मदद करने के लिए या उनमें निवेश के भी रास्ते उपलब्ध कराता है क्या? या बिल्कुल, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कोई भी आपकी गोल है, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन एजुकेशन एक गोल है, या फिर कोई भी और रिटायरमेंट प्लानिंग कैन बी वन गोल। तो हर गोल के लिए आपको प्लानिंग के लिए दो चीज़ों को सुनिश्चित करना पड़ता है। एक कि उसके लिए क्या कॉर्पस का रिक्वायरमेंट होगा और आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है उस गोल तक पहुंचने के लिए, और उसके हिसाब से आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके अमाउंट निकालना पड़ता है और उस अमाउंट को आप म्यूचुअल फंड के थ्रू वैसे फंड्स में कर सकते हैं। अगेन वहाँ पे अच्छे ऑप्शंस हैं, इक्विटी फंड्स हो गए या हाइब्रिड फंड्स हैं, जिसके द्वारा हम लंबे समय में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अब मैं चलता हूँ शुभजीत के पास। গোল মানে গন্তব্য, এই গন্তব্যের ক্ষেত্রে গোল গোল চিন্তাভাবনা রাখলে একেবারেই চলবে না। তার কারণ সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা রাখতে হবে, যেরকম বিশেষজ্ঞ বলছিলেন, যেরকম আমার সহকর্মী অংশুমানও বলছিলেন আপনাদের। হয়তো এর আগে অনেক কিছু প্ল্যান করে ফেলেছেন, সেটাকে নিয়ে চলতে হচ্ছে, সেটাকে নিয়ে চলুন, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন কোনো প্ল্যানও এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে করতে হবে যেই প্ল্যান বা যেই গোল সেট করলে বা যেই পরিকল্পনা এই মুহূর্তে করলে আপনার যে স্বপ্নগুলো, যে গোল বারবার বিশেষজ্ঞ বলছিলেন, সেই গোল ছুঁতে আপনার সুবিধা হবে, মানে সেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন। তো সেরকম কোনো প্রশ্ন কারোর কাছে আছে কিনা আমি জানবো, প্লিজ। सर, मेरा नाम है सजल मिस्त्री। मेरा सवाल ये है, मैं फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, तो मैं SBI म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करूं? तो जैसे आपने बैंक एफडी में इन्वेस्ट किया है, अब यदि मैं आपको यदि दो ऑप्शन देता हूं कि आपके पास आप 10 साल के लिए मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 10 साल में आपके पास दो ऑप्शन है। एक जगह आपने इन्वेस्ट किया तो आपको नुकसान होना ही होना है, और दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे ज़्यादा चांस है कि आपका फ़ायदा होगा, हो सकता है कुछ चांस हो कि नुकसान भी हो सकता है। तो आप दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली नेचुरल आप सेकंड चॉइस पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ़ायदा होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। अब नुकसान से मेरा मतलब क्या है? नुकसान से मतलब है कि यदि आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में कर रहे हैं, वहाँ पे आपको 7% मान लीजिए एफडी रेट आ रहा है, आप टैक्सेबल हैं, आप उसके ऊपर हर साल टैक्स दे रहे हैं, तो नेट ऑफ टैक्स रिटर्न मान लीजिए 5-5.5% आ रहा है। बट इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, वो करीब 6-7% से ग्रो कर रही है।
तो आपका जो परचेजिंग पावर है, आपका वेल्थ बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है एक्चुअली। वेयर इज यदि लंबे समय के लिए आप कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी हाइब्रिड फंड्स में, तो वहाँ पे ये रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होता है जो इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर सकता है और आपका टैक्स भी आपको कम लगता है। तो वहाँ पे एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आई विल रेकमेंड कि आप लंबे समय के लिए यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड पर ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, आपका वेल्थ क्रिएशन बेटर होगा। और अब हम आ गए हैं अपने तीसरे चरण में, जिसका नाम है अभी देर नहीं हुई या अभी देर नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो आमतौर पर जीवन में अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं, अपनी बचतें जुटा चुके हैं और उनके पास एक बचत का रिजर्व पेंशन के तौर पर उपलब्ध है। मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल इस वर्ग के लिए सबसे उलझा हुआ सा वर्ग है निवेश की दृष्टि से, क्योंकि वो अपने जीवन की सांझ में है, अपनी बचत व्यवस्थित कर चुका है। उसकी 3 ज़रूरतें होती हैं आमतौर पर रिटायरीज की। पहली, उनके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो उनकी किसी समस्या में मदद कर सके स्वास्थ्य संबंधी। दूसरा, उनके पास एक नियमित इनकम होनी चाहिए, एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए जो उन्होंने अब बचतों में की। अगर उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है तो बहुत सारे लोग भारत में पेंशन के दायरे में नहीं और उनकी पेंशन के लिए बचत नहीं। और तीसरी चीज़ है कि उनके पास कुछ इतनी पूंजी होनी चाहिए जो वो अपनी अगली पीढ़ी को अपने परिवार के लोगों को दे सकें। म्यूचुअल फंड में इन तीनों का इलाज मौजूद है क्या? इन तीनों का समाधान उपलब्ध है क्या? नाउ कमिंग टू हियर फर्स्ट सेगमेंट, जो आपको मंथली इनकम चाहिए, तो इसके लिए कई सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे बहुत सारे हाइब्रिड फंड्स हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी हो गई या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड कैटेगरी हो गई। तो इन कैटेगरीज में आप इन्वेस्टमेंट करके उससे पर मंथ एक विड्रॉल कर सकते हैं, जिसको हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं म्यूचुअल फंड में। और उसमें आप अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। यदि फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट है कि हर महीने 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाए, तो आप एक पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप रफली कैलकुलेट कर लीजिए 7-8% के हिसाब से, और उस हिसाब से वो पर मंथ पैसा विड्रॉ होता रहेगा और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता रहेगा। इसके अलावा और प्लस इन फंड्स में जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न का वो इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो एट द सेम टाइम आपका कैपिटल भी कम नहीं होगा ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा जो पार्ट है जो हमने कहा कि इमरजेंसी फ़ंड, जो एनी टाइम जो रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो फंड को हम जैसे कुछ शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हो गए उसमें कर सकते हैं, या फिर जैसे आर्बिट्राज फंड है उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे कि हम ये फ़ंड को पार करके रख सकते हैं और हमें थोड़ा बेहतर रिटर्न भी मिल सकता है और लिक्विडिटी भी एनी टाइम अवेलेबल होगी और मार्केट के उतार चढ़ाव का इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तीसरा जो सेगमेंट है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और जिससे आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में आपको हेल्प होगा, वो फंड को अगेन आप उसमें इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड्स के कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। इक्विटी में भी अलग अलग तरह के ऑप्शन है। अगेन जो लार्ज कैप फंड्स है या इंडेक्स फंड है उसमें हम कुछ पार्ट कर दें और कुछ हाइब्रिड फंड्स हो गए उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वो फंड को डिप्लॉय करके रख सकते हैं और उससे लंबे समय में अच्छे कंपाउंडिंग का फ़ायदा होगा। अब हम सीधे चलते हैं शुभजीत के पास। জীবনের এমন একটা পর্যায়ে এসে যারা রিটায়ার করেছেন বা করবেন তখন ভাবছেন যা সঞ্চয় আগামী দিনে সেই পরিকল্পনাগুলো কিভাবে বাস্তবায়িত হবে, তাদের জন্য এই পরিকল্পনাগুলো, এই প্ল্যানসগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাই তাদের তরফ থেকে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমি একবার দেখবো। ও আপনি প্লিজ। सर मैं रवि विश्वास बोल रहा हूँ। मैं रिटर्न करने वाला हूँ। रिटर्न करने के बाद मेरा जो रुपया मिलेगा हम म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें कि हमको हर महीने में कुछ रिटर्न मिल सकता है? या जैसे मैंने आपको बताया, तो इस तरह के कुछ फंड्स हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का एक ऑप्शन होता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसी इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा विड्रॉ होकर हर महीना आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और इसकी प्लानिंग का भी अलग अलग तरीका है। जैसे मान लीजिए आज आप रिटायर हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि अगले महीने से ही मेरा मंथली इनकम आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि अगले 1 साल का जो मंथली विड्रॉल का अमाउंट है वो कोई आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में रखें, जैसे मनी मार्केट फंड्स होते हैं। तो वहाँ से 1 साल तक आपका पैसा आता रहेगा और बाकी
पैसा जो है आप हाइब्रिड फंड्स में रखें, जो जिससे कि आप 1 साल के बाद पैसा हर मंथली बेसिस पे विड्रॉ करना शुरू करें। तो इससे आपका कैपिटल भी बने रहने की ज़्यादा चांस है और आपका जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है वो मनी मार्केट फंड के थ्रू पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। एक सवाल जो कई लोग पूछना चाहते होंगे, मैं सबकी तरफ से पूछ देता हूँ। रिटायरमेंट वाले लोगों के लिए, रिटायर्ड फंड के लिए जो हमारे पास बार बार आता है, वो सवाल ये है कि रिटायरमेंट वाले लोगों के लिए, जिनके पास रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, उनके लिए टैक्स बड़ी मुश्किल होती है और उनके पास टैक्स बचाने के विकल्प बहुत सीमित होते हैं और काफ़ी टैक्स लगता है उनके पास, जो उन्होंने पूरे जीवन भर बचत की है उसके ऊपर। म्यूचुअल फंड इसमें कैसे मदद कर सकता है? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो यदि आप ट्रेडिशनल वे में फॉर एग्जांपल बैंक डिपॉजिट या कहीं ऐसे जगह पे करते हैं, तो जो भी इंटरेस्ट आपको हर साल मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स लगता है, दैट बिकम्स ए टैक्सेबल इनकम। बट यदि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर साल आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे तभी वो टैक्स एप्लीकेबल होता है, वो जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। चलते चलते कार्यक्रम के अंत में मैं मनोज जी से पूछूंगा, एक कोई सबसे ज़रूरी टिप जो आप सबको देना चाहेंगे, सबके लिए। तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह ना करें, उसे आप मल्टीपल जगह पे स्प्रेड करके करें। कुछ आप गोल्ड सिल्वर में भी कुछ पैसा निवेश करके रखें, कुछ बैंक्स में भी रखें। तो इस तरह से जो आप बैलेंस्ड वे में अपना पैसा रखेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए वो काफ़ी सही रहेगा। TV9 বাংলা, মানি9 আর SBI মিউচুয়াল ফান্ড তাদের যৌথ উদ্যোগে আমাদের সামনে, আপনাদের সামনে সেই সুযোগ করে দিয়েছে যে সংশয় যেখানে যেখানে রয়েছে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে, সেই সংশয় দূর করে আসুন, নিজেদের জীবনকে, যাপনকে, প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে আরও একটু উন্নততর করে তুলি, আরও একটু ভালো করে তুলি, এই আশা আমাদের থাকবে। তাই সবাই ভালো থাকবেন, অন্যকেও ভালো রাখবেন। মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির অধীনে। পরিকল্পনা সম্পর্কিত সমস্ত নথি সাবধানতার সাথে পড়ুন।